Today we are going to start the very next topic, that is determinants of aggregate demand. I am going to share the screen. In the previous lecture, we have studied the concept of aggregate demand, and we have also studied that why aggregate demand curve is negatively sloped. We have studied the three reasons that explain why aggregate demand curve is negatively sloped. Today we are going to discuss the changes in aggregate demand and the determinants of aggregate demand which cause changes in aggregate demand. First of all, we have to define the concept of aggregate demand. Aggregate demand curve shows the amount of real output or real GDP that buyers collectively desire to purchase at each possible price. To purchase at each possible price. So you can say that aggregate demand curve shows the relationship between the two variables. First one is price level, which is overall price level and which is independent variable. And second one is real GDP demanded by the economy, which is dependent variable. And there is an inverse relationship between the price level and real GDP demanded by the economy. So the graphical representation of aggregate demand curve is on the screen. On the y-axis, there is the price level, and on the x-axis, there is real domestic output or GDP. And aggregate demand curve is negatively sloped, means higher price level is associated with the lower real GDP, and lower price level is associated with the higher GDP demanded by the economy. And we have also studied the three reasons that explain this negatively sloped demand curve in the previous lecture. Today's topic is changes in aggregate demand. There are two types of changes in aggregate demand. First one is due to change in the price level, and the second one is due to change in the other factors. First one, that is due to change in the price level. There will be a movement along with the aggregate demand curve. There will be a movement along with the aggregate demand curve. एग्रीगेट डिमांड कर्व जो बन चुका है उसी के साथ मूवमेंट होगी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे अगर प्राइस लेवल चेंज होता है. एंड सेकंड चेंज इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. जब अदर फैक्टर चेंज होंगे उस केस में आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा. इंक्रीज होने की सूरत में राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा. ये जो अदर फैक्टर्स हैं ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कहलाते हैं. ये जो अदर फैक्टर्स हैं या अदर थिंग्स हैं ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कहलाते हैं. मीन अगर कोई भी डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है तो उस केस में एग्रीगेट डिमांड का जो है वो शिफ्ट कर जाएगा. इंक्रीज होने की सूरत में राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. जबकि प्राइस लेवल अगर चेंज होता है तो उस केस में शिफ्टिंग नहीं होगी, उसमें उसी कर्व के साथ मूवमेंट होगी. तो ये दो तरह की चेंजेस है एग्रीगेट डिमांड. शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं. एग्रीगेट डिमांड का जो शिफ्ट कर जाता है उसके दो कंपोनेंट्स हैं. एक तो जितनी अमाउंट डिटर्मिनेंट की चेंज हुई है, मतलब वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इन्वेस्टमेंट. एक तो ये कि जितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की चेंज हुई है जीडीपी में भी उतना ही इजाफा उसी वक्त डायरेक्टली हो जाएगा. मतलब इन्वेस्टमेंट में $5 बिलियन का इजाफा हुआ है तो जीडीपी भी $5 बिलियन के बराबर बढ़ जाएगी. लेकिन हमने मल्टीप्लायर में पढ़ा है
इससे पीछे वाले लेक्चर में देखें, हमने मल्टीप्लायर का पढ़ा था। मल्टीप्लायर में हमने पढ़ा है कि अगर इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है तो जीडीपी में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है, अगर इन्वेस्टमेंट में कमी आती है तो जीडीपी में कई गुना ज़्यादा कमी आ जाती है। और मल्टीप्लायर यही मेजर करता है कि कितने टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट का जीडीपी पे इफेक्ट होता है। सो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से जीडीपी में कितना चेंज आएगा, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी है वो मल्टीप्लाई होगा इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है उसके साथ, तो रियल जीडीपी में चेंज आएगा। हेयर यू कैन सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन हम इसके बाद न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं किस तरीके से हम वो फाइंड आउट करते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप देखें, ये कर्सर की मूवमेंट को देखिएगा, ये ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड 1 जो है, ये जो राइट साइड पे मूवमेंट है ये डॉटेड लाइन है, ये उस चेंज को जाहिर कर रही है कि जैसे $5 बिलियन का मैंने बोला इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, ये उसको जाहिर कर रही है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में या जीडीपी में कितना इजाफा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। लेट्स सपोज के एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.75 है, 0.6 है, जो भी हो व्हाट्सएवर, 0 से 1 के दरम्यान उसकी रेंज है कोई भी। लेट्स सपोज के 0.75 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लायर का फार्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी, इट मीन्स 1/1 माइनस 0.75, तो आंसर इज 4। मल्टीप्लायर 4 है और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? $5 बिलियन का। तो व्हाट हैपन टू जीडीपी? जीडीपी में कितना इजाफा होगा या एग्रीगेट डिमांड में कितना इजाफा होगा? चेंज इन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये वही फार्मूला है जो मल्टीप्लायर का है, जस्ट उसको रीअरेंज किया है। तो मल्टीप्लायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स इन्वेस्टमेंट में चेंज से। सो ये जो डिस्टेंस है डॉटेड लाइन वाला, ये $5 बिलियन का था, तो इससे 4 टाइम्स जो है वो आगे तक एग्रीगेट डिमांड कर जाएगा। इसी तरह वाइस वर्सा भी अगर नीचे की तरफ आता है तो ये मल्टीप्लाई नीचे की तरफ भी सेम वे में काम करेगा। ये आपके सामने एग्जांपल मेंशन है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस एग्जांपल। ये फार्मूला है, ये वही फार्मूला है जो हम मल्टीप्लायर की वैल्यू के लिए भी यूज करते हैं। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन स्पेंडिंग वेरिएबल, लेट्स से इन्वेस्टमेंट। अगर उसी फार्मूले को रीअरेंज करें, आपके सामने रीअरेंज किया गया है, इंक्रीज इन या चेंज इन रियल जीडीपी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया $5 का और मल्टीप्लायर की वैल्यू है 4, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे और वो अफेक्ट जाएगा रियल जीडीपी पे। दैट्स वाई जो डॉटेड लाइन है वो इस इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट को जाहिर कर रही है, और फिर जीडीपी पे जो उसका अफेक्ट जा रहा है वो मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होने के बाद जाएगा। होपफुली ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये जिन फैक्टर्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट कर जाता है उनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। देयर आर 4 मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर स्पेंडिंग, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, थर्ड वन इज गवर्नमेंट परचेजेस, and fourth one is net export. As you know, we have calculated the GDP by expenditure method. उसमें हमने इन 4 वेरिएबल्स को ऐड किया था, तो ऑब्वियसली जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो उसी से ही तो डिमांड जनरेट होती है। सो दीज आर द 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर स्पेंडिंग। बहुत सिंपल है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड।
कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी आएगी, कंजम्पशन में कमी आएगी, एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। सब डिटर्मिनेंट है जो वाया मेजर डिटर्मिनेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व को अफेक्ट करता है। 1.1 है कंज्यूमर वेल्थ। कंज्यूमर वेल्थ ज्यादा होगी तो उसका कंजम्पशन लेवल भी ज्यादा होगा। कंज्यूमर वेल्थ ज्यादा होगी तो उसका कंजम्पशन लेवल भी ज्यादा होगा। कंजम्पशन ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। कंज्यूमर वेल्थ कम है तो कंजम्पशन भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। हाउस होल्ड बोरिंग। हाउस होल्ड बोरिंग करता ही क्यों है? कंजम्पशन करने के लिए। वो सेविंग करने के लिए तो बोरिंग नहीं करेगा, क्योंकि जो बोरिंग की है उस पर उसने इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, उसकी उसने कॉस्ट पे करनी है, तो वो ऑब्वियसली कंजम्पशन करने के लिए ही बोरो करता है हाउस होल्ड। तो जितनी ज्यादा बोरिंग करेगा उतनी ही ज्यादा कंजम्पशन होगी और उतनी ही ज्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी। एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। इसी तरह जितनी कम हाउस होल्ड बोरिंग होगी उतनी ही कंजम्पशन भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। 1.3 is consumer expectation about income। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में उसकी इनकम बढ़ने वाली है, तो उसका कंजम्पशन लेवल इंक्रीज कर जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में उसकी इनकम कम होने वाली है तो उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। 1.4 इज पर्सनल टैक्सेस। देखें, कंजम्पशन डिपेंड करती है डिस्पोजेबल इनकम पे, और डिस्पोजेबल इनकम ऑब्वियसली इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो जितने टैक्सेस ज्यादा होंगे डिस्पोजेबल इनकम उतनी ही कम होगी। वाई माइनस टी इसका फार्मूला है, एंड कंजम्पशन का फार्मूला सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई डी, वो डिस्पोजेबल इनकम है। तो जितने टैक्सेस ज्यादा होंगे उतनी ही डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, और उतनी ही कंजम्पशन कम होगी, उतनी ही एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड, जितने पर्सनल टैक्सेस कम होंगे उतनी ही डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, और जितनी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी उतनी ही कंजम्पशन ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। सेकंड नंबर है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। अगर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में इजाफा होता है तो एग्रीगेट डिमांड में भी इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। जितना इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में कमी आती है एग्रीगेट डिमांड में भी कमी आएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। देयर आर सम सब डिटर्मिनेंट which affect aggregate demand via investment spending। 2.1 पे रियल इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। आपने इन्वेस्टमेंट फंक्शन में ये स्टडी किया है कि इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का इनवर्स रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी ज्यादा है, तो लोग कम बोरो कर सकेंगे, कम इन्वेस्टमेंट होगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। जहां पे भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो मुझसे मुझे रोक कर जो है ना वो पूछ सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल, इसलिए मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें।
एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ये होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जस्ट लाइक मोर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मीन्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। जितने आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा नजर आ रहे होंगे, आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और जितने आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कम नजर आ रहे होंगे, उतनी ही आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। Expected returns may also be affected by the following variables. Expectations about future business conditions. अगर तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस, तो आपको ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न नजर आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड कर विल शिफ्ट टू द राइट साइड। इसी तरह अगर आपको एक्सपेक्टेशन अच्छी नहीं है अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशन के, फ्यूचर में डिमांड नहीं होगी या प्राइस डाउन हो जाएगी या व्हाटसोएवर, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस्ड, जितनी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, उतनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उतना ही आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होगा। और क्योंकि रिटर्न का फार्मूला वही है जो प्रॉफिट का है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट कम है, इट मीन प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो जितना रिटर्न या प्रॉफिट ज्यादा है, उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। ऑन द अदर हैंड, जितनी हम आउटडेटेड बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, उतनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, और जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, उतने ही रिटर्न कम होंगे, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, एंड एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। राइज इन एक्सेस कैपेसिटी अनयूज कैपिटल, कैपिटल एक्यूमुलेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैपिटल मौजूद है, इन्वेंटरीज में इजाफा हो जाता है, तो न्यू इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम नजर आएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, और अगर एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, अनयूज कैपिटल नहीं बढ़ा, इन्वेंटरीज कम है, तो फिर नई इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी ज्यादा नजर आएंगे, इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस टैक्सेस। बिजनेस टैक्सेस अगर ज्यादा होंगे, तो लो एक्सपेक्टेड रिटर्न होंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और इसके मुकाबला में अगर बिजनेस टैक्सेस कम लगाए गए हैं, तो आपको हाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हाई रिटर्न नजर आएगा, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। आप देख सकते हैं जैसे सी पैक के तहत जो ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल फ्री जोन बनाई गई है, सॉरी टैक्स फ्री जोन बनाई गई है, टैक्स फ्री जोन बनाई गई है, बिजनेस टैक्सेस जो है वो नहीं लगाए गए या कम लगाए गए हैं, ताकि लोगों को हाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिटर्न नजर आए, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो सके। इस केस में एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जितनी ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी, एग्रीगेट डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और जितनी कम गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। यहाँ पे इससे हटकर एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा हो रहा है, तो क्यों ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते जाएं, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाए, जीडीपी बढ़ती जाए, हमें तो फायदा है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। द रीजन इज दैट ड्यू टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, टैक्सेस तो एक लिमिट तक ही बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते जाएंगे,
तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब टैक्सेस से ज्यादा हो, जिसे हम बजट डेफिसिट बोलते हैं, तो उसको हमने फाइनेंस कहाँ से करना है, वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आएंगे, उसे हम उसको फाइनेंस करने का जो मेथड है उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। बैंक्स वगैरह से लोन लेंगे या नए नोट इशू करेंगे व्हाट्सएवर, उस केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो जीडीपी का एक वेरिएबल बढ़ने की वजह से दूसरा वेरिएबल कम हो गया है, तो इसका इफेक्ट जीडीपी पे क्या जाएगा, ये तो इसका इफेक्ट क्राउड आउट हो गया है। दिस इज नेम्ड एज अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इसलिए हम एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस से एक्सीड करती है तो जो डिफरेंस होता है वो हमने बैंकिंग के जरिए फाइनेंस करना है, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। दिस इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सो कम टू आवर पॉइंट, fourth major determinant of aggregate demand is net export spending. Net export spending. फोर्थ वेरिएबल एन एक्स, अगर आपको याद हो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये बनता है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ऑब्वियसली अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती हैं और इंपोर्ट कम होती हैं तभी ये वेरिएबल बढ़ेगा। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट्स से ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इंपोर्ट्स कम हो, उस केस में ये जो है वेरिएबल इंक्रीज करेगा। तो ऑब्वियसली अगर नेट एक्सपोर्ट बढ़ती हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, अगर नेट एक्सपोर्ट कम होती हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। नेट एक्सपोर्ट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग में आल्सो बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग टू वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम अब्रोड। अगर दूसरे कंट्रीज की इनकम में इजाफा होता है तो नेशनल इनकम अब्रोड, अगर दूसरे कंट्रीज की इनकम में इजाफा होता है तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की इनकम में इजाफा होता है तो चाइना की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी एक्सपोर्ट इधर आती हैं। इसी तरह पाकिस्तान का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है, अगर यूएसए की इनकम बढ़ती है तो पाकिस्तानियों की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो इसी तरह अगर नेशनल इनकम, सारे कंट्रीज आपस में इंटरलिंक है ऑब्वियसली, एक दूसरे को फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी दे रहे हैं। अगर दूसरे कंट्रीज की इनकम में इजाफा होता है, स्पेशली हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव होगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। सेकेंड वेरिएबल इज एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करता है, पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करता है, मतलब रुपया सस्ता होता है डॉलर के मुकाबला में, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं डॉलर महंगा होता है रुपये के मुकाबला में, दोनों डेप्रिसिएशन है। तो रुपये से आने वाली प्रोडक्ट भी सस्ती हो जाएंगी फॉरेन कंट्रीज के लिए। रुपया सस्ता होगा ना, करेंसी की वैल्यू डाउन हुई है, तो दूसरे कंट्रीज के लिए हमारी प्रोडक्ट सस्ती हो जाएंगी, मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाएंगी फॉर अदर कंट्रीज। सो दे विल बाय मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी। ऑन द अदर हैंड, डॉलर महंगा हुआ है ना, तो डॉलर से आने वाली चीजें भी महंगी हो जाएंगी, सो योर इंपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, इंपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो इससे क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट बैलेंस, इंपोर्ट्स ऑब्वियसली कम भी हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगी, फिर कम भी हो जाएंगी, नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, इंपोर्ट कम हुई है, नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड, मतलब करेंसी डेप्रिशिएट होने से
एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड, थ्योरी यही कहती है। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, करंट सिनेरियो से कंपैरिजन करेंगे तो आप कहेंगे ऐसा होता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली यही बनता है, ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है वो मैं उसकी रीज़न भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, रुपए की वैल्यू डाउन हो जाती है डॉलर के मुकाबला में, तो रुपए से आने वाली प्रोडक्ट्स जो है वो भी उनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बिकम मोर चीपर फॉर फॉरेन कंट्रीज, so they will buy more of goods and services from पाकिस्तान, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। ऑन द अदर हैंड डॉलर एक्सपेंसिव हुआ है, तो डॉलर से आने वाली प्रोडक्ट्स जो है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, इंपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, सो यू विल बाय लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर, तो हम इंपोर्ट्स कम कर देंगे, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगी, नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। करेंसी डेप्रिशिएट होने से फायदा होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड का राइट पर शिफ्ट होना चाहिए। रियलिटी में अब ये इससे हटकर अब मैं बता रहा हूँ आपको, रियलिटी में होता नहीं है पाकिस्तान का जिसका केस है कि करेंसी डेप्रिशिएट से डेप्रिशिएट होती जा रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी कुछ हद तक बढ़ जाती हैं, लेकिन साथ में हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ जाती हैं। तो इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़ती नहीं है, लेकिन उनकी प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। डॉलर महंगा हो गया, प्रोडक्ट्स महंगी होगी, हम परचेज उतने की उतने ही करते हैं। डॉलर महंगा हो गया, प्रोडक्ट्स भी महंगी होगी, इंपोर्ट्स भी महंगी होगी, लेकिन हम परचेज उतने की उतने ही करते हैं। द रीज़न इज दैट के हम ऐसी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं जिनका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चर पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं मेजर, तो उनका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो या मशीनरी है, मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज़ हैं, जब तक हम खुद प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे। So these are the determinants of aggregate demand which cause shifting in aggregate demand। ये overall determinants आपके स्क्रीन पर विजिबल है, 4 मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं, आगे उनके सब डिटर्मिनेंट्स हैं। दिस इज द सोर्स ऑफ टूडेज लेक्चर, बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, 18th एडिशन, चैप्टर 29, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो यू आर फ्री टू आस्क।